Hello guys, I'm going to explain you stack operations. Okay, the algorithm of stack operations. So there are three stack operations: push, pop, and pip. Push means to enter an element, pop means to delete an element from the stack. Okay, and pip means to display an topmost value. Okay, from the stack. Pop. This is the pop function. Okay, this is the function used to pop an element. Okay, then push and P. These three operations we will see right now. First of all, we will see push operations. Okay, I am taking some of the parameters such as stack, then size, then top and value. Okay guys, here I took stack. What is stack? Stack, okay, is an array. Here I taken stack as an array. Size is size of an array. That means size of stack. Top is, here I have taken top as a stack pointer, which will give us the topmost value. Okay. Value. Value means here I have stored some value which I need to store in a stack. Okay, so what will be the first operations? See, we know that if we have to keep any thing, अगर हमें कोई एक चीज़ एक डिब्बे में रखना है तो हम पहले देखेंगे कि उस डिब्बे में जगह है कि नहीं, राइट? Is that box is full, container is full or not? Similarly, we will check here first of all for overflow कि stack overflow है कि नहीं, उसमें जगह है कि नहीं, right? So आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आपको साइज टॉप सब कुछ यहाँ पे दिया है, राइट? सो विद द यूज ऑफ साइज एंड टॉप यू हैव टू राइट इफ कंडीशन. Okay, pause the video and just say what will be the logic in the if condition for checking if the container is if the stack is overflow or not. Okay, come on. Now I will tell you the logic. If top is equals to size minus 1, right overflow. Okay, now see, if, we are writing printf instead of write in C program, but as it is an algorithm we need to write a write keyword. Okay, so if top is equals to size minus 1, that means what? This is a stack. Okay, n is equals to, if I take 5, that means index will be from 0 to 4, right? 1 2 3 4 5 means that means total 5 element can be stored in this stack. Okay, so if I have stored first 4 elements, okay, in the first 4 index number, so top will be here. Okay, as we know, अपन ने हमें पता है कि टॉप जो है यहाँ पे, टॉप वो कहाँ पे होता है स्टैक में? वो एंड जिसमें हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और जिसमें से हम डिलीट भी कर सकते हैं, वही एंड पे टॉप होता है. मतलब जो वैल्यू सबसे ऊपर होगी, जो वैल्यू सबसे टॉप पे होगी, उसी पे ही टॉप होगा. ओके, टॉप पॉइंटर. तो इधर हमारी वैल्यू जो है 4, राइट, वो एकदम टॉप पे है, तो टॉप इंडेक्स 3 पे होगा, राइट? ओके, कम ऑन. नाउ टॉप हमारा इंडेक्स 3 पे है, दैट मीन्स हियर 3 is equals to साइज हमने कितनी ली है? 5 minus 1, मतलब 3 is equal to 4. Is this correct? No, this is not correct. That means ये ओवरफ्लो नहीं लिखेगा और दूसरे एल्स पार्ट में आ जाएगा, दूसरे ऑपरेशन में, राइट? दैट मीन्स स्टैक में अभी भी जगह है. ओके, अब दूसरे पॉइंट पे अगर जगह है, राइट, तो अब क्या करेगा? हमें कौन सा ऑपरेशन देना है कि टॉप की वैल्यू इंक्रीज हो जाए.
ओके, एज वी हैव टू वैल्यू हम लेंगे 5, हमें ये वाली वैल्यू इधर रखनी है। अभी हमें पता चल रहा है कि जगह है तो हम टॉप इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमें दूसरे ऑपरेशन में दूसरे पॉइंट में इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट टॉप वैल्यू। ओके, तो टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, ये असाइनमेंट ऑपरेशन है। असाइनमेंट ऑपरेशन हम एल्गोरिथम में प्रोफेशनली ऐसे लिखते हैं। ओके, द असाइनमेंट ऑपरेशन इन द एल्गोरिथम विल बी लाइक दिस। क्यों यही एरो है? क्योंकि हमें पता है कि असाइनमेंट ऑपरेशन का मतलब क्या है। राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड की वेरिएबल में स्टोर होती है, राइट? इसीलिए टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, मतलब टॉप अब इधर से उस इधर जाएगा, टॉप की पोजीशन चेंज हो गई है। ओके, नाउ द थर्ड ऑपरेशन, अगर टॉप इधर आ गया है तो हम ये 5 जो है इधर स्टोर कर देंगे। यस, सो वी हैव टू assign value in top. Okay, done. So now value stack of top, ये क्या है? पॉइंटर है, राइट? ये क्या है? पॉइंटर है, और स्टैक हमारा क्या है? एरे है। तो स्टैक ऑफ टॉप में क्या होगा? वैल्यू होगी। ओके, तो मतलब स्टैक ऑफ टॉप में इसकी वैल्यू क्या हमने दी है? 5। ओके, स्टैक ऑफ टॉप इज इक्वल टू वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने 5 दी है, मतलब 5 कहाँ पे स्टोर होगा? इधर। इसका मतलब 5 यहाँ पे स्टोर हो गया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पुश ऑपरेशन। अंडरस्टूड? नाउ वी विल गो अहेड ऑन पॉप ऑपरेशन। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट पॉप ऑपरेशन। सो व्हाट एग्जैक्टली पॉप इज? सो पॉप इज नथिंग, इफ आई delete an existing element from the stack, I say I pop an element from the stack. Okay, understood? Now first of all, अगर हमें कोई चीज़ किसी कंटेनर में से खाली करनी है, तो फिर हमें कोई चीज़ कंटेनर में से लेनी है, तो पहले हम क्या चेक करेंगे? इज एनीथिंग प्रेजेंट, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंटेनर? इफ yes, then we will take out. But if the container is empty, then what we'll say? We'll say that this container is already empty, it's अंडरफ्लो। ओके, पुश में हम क्या कर रहे थे? ओवरफ्लो। ओके, पॉप में हम क्या करेंगे? अंडरफ्लो। तो यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्टैक, वैल्यू और टॉप। तो यहाँ पे हमें साइज की ज़रूरत नहीं है, आगे आपको पता चलेगा, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव नॉट टेकन साइज ओवर हियर। ओके, क्योंकि साइज की कोई ज़रूरत अभी नहीं है इसमें। Okay, now 0, 1, 2, 3 and 4, as always n is equals to 5. If any value is present, okay, let it be. First टॉप की वैल्यू यहाँ पे 0 है या तो फिर -1, whatever you say. ओके, सो उसका मतलब क्या है कि स्टैक पूरा का पूरा एम्प्टी है। ओके, तो हमें यही प्रिंट करवाना है, यही लॉजिक हमें यहाँ पे लिखना है पहले ऑपरेशन में, कि अगर टॉप की वैल्यू 0 है तो हमें क्या राइट करना है? अंडरफ्लो। दैट मीन्स स्टैक इज टोटली एम्प्टी, देन हाउ एंड व्हाट विल फैच? ओके, अब सेकेंड ऑपरेशन में अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है और अगर टॉप 0 नहीं है, ओके, यहाँ पे हमने 0 से इंडेक्स स्टार्ट की है, तो यू कैन टेक हियर -1। मैंने आपको स्टैक में कहा था कि टॉप अगर पूरा स्टैक एम्प्टी होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है, उसका मतलब है कि टॉप -1 है। ओके, अगर हम इंडेक्स 1 से स्टार्ट करते हैं देन वी कैन टेक टॉप एज 0। ओके, बट हियर आई हैव स्टार्टेड इंडेक्स फ्रॉम 0। यहाँ पे मैं लूँगी टॉप -1, मतलब टॉप -1 है, दैट मीन्स अंडरफ्लो है। ओके, तो अब टॉप की वैल्यू क्या है? 0, मतलब लूप ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ओके, सो सेकेंड पॉइंट पे, मतलब सेकेंड ऑपरेशन में जाएगा, उसका मतलब वैल्यू जो है
ये वैल्यू, ओके। उसमें हमें ये स्टैक का जो टॉप है उसकी वैल्यू, मतलब ये वैल्यू में हमें जो स्टैक का टॉप है स्टोर करनी है। इस वैल्यू में ये 1 स्टोर करना है। क्यों? क्योंकि हमें फैच करना है, यू नो वी हैव टू पॉप एन एलिमेंट। पॉप का मतलब कोई भी एलिमेंट हम पॉप करेंगे, राइट, तो उसका एक कंटेनर तो हम लेंगे ना, मतलब वो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया है। सो स्टैक ऑफ टॉप हमें वैल्यू में स्टोर करना है, राइट, तो वैल्यू स्टैक ऑफ टॉप। पुश में हम क्या करते थे, वाइस वर्सा, ओके, उल्टा, मतलब पॉप पुश में हम करते थे कि स्टैक ऑफ टॉप जो था, राइट, स्टैक ऑफ टॉप, वो हम पुश में वैल्यू को असाइन नहीं कर देते। वैल्यू जो मतलब वैल्यू जो हमने ली थी वो हम स्टैक ऑफ टॉप में डालते थे, राइट, असाइन करते थे। वैसे यहाँ पे उल्टा है कि हमें वैल्यू इधर से लेके स्टैक ऑफ टॉप, मतलब स्टैक ऑफ टॉप की वैल्यू हमें लेके इस वैल्यू में हमें स्टोर करनी है। अंडरस्टैंड? अब ये आपको पता चलता है, ओके, देयर आर मेन 2 ऑपरेशंस इन अ पॉप, ओके, दैट पहले हम टॉप देखेंगे इफ इट इज अंडरफ्लो, ओके, देन वी विल राइट दैट इट इज अंडरफ्लो, और अगर ये फॉल्स होता है कंडीशन, देन क्या होगा, स्टैक ऑफ टॉप जो होगा, टॉप मोस्ट वैल्यू वो क्या होगी, वैल्यू में स्टोर होगी। देन यू कैन राइट थर्ड ऑपरेशन इज रिटर्न वैल्यू, ओके, वैल्यू हमें रिटर्न करनी है जो हमें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिटर्न वैल्यू नहीं आएगा। अगर हमने देखिए थर्ड ऑपरेशन टॉप की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि हमने ये एलिमेंट अब वैल्यू में स्टोर कर दिया है, अब ये डिलीट कर दिया है, राइट, ये वैल्यू हमने डिलीट कर दी है। तो टॉप, अगर पुश ऑपरेशन में वैल्यू इंसर्ट के लिए टॉप इंक्रीमेंट होता था, तो यहाँ पे डिलीट के बाद टॉप डिक्रीमेंट भी होगा, तो टॉप इज इक्वल्स टू टॉप -1। अंडरस्टूड? फिर हम लिख सकते हैं रिटर्न, ओके, पता चला, डिलीट के बाद टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, टॉप की पोजीशन डिक्रीमेंट होगी, टॉप इज इक्वल्स टू टॉप -1, ओके, इसीलिए अब टॉप वापस से -1 हो गया क्योंकि एक ही वैल्यू थी स्टैक में जो हमने डिलीट कर दी है। अंडरस्टूड? Now we will go ahead to the peep operation. Peep operation, nothing, it is a very simple operation. It is just for the display. See, peep में क्या होता है, if top minus I plus 1 is less than 0, top minus I plus 1 is less than 0, उसका मतलब कि wrong position. We have to write as a wrong position, okay, write wrong position, okay, else return ये वाली पोजीशन। अगर पोजीशन गलत नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ये वाली पोजीशन, ओके। यहाँ पे हमें क्या करना है, आई में हमें वो एलिमेंट डालना है जो हमें डिस्प्ले करवाना है, ओके। तो हम वो डालेंगे, वो पोजीशन देखेंगे, मतलब ये हमने पोजीशन दी है, इंडेक्स दी है कि क्या ये करेक्ट पोजीशन है कि नहीं, वो हमें पहले चेक करेंगे, ओके। इफ टॉप माइनस I plus 1 इज लेस देन 0, मतलब रॉन्ग पोजीशन है, तो वैल्यू कैसे फैच होगी, पोजीशन ही गलत है तो, ओके। और अगर
पोजीशन सही है तो वो हमें वो वैल्यू दिखाएगा, मतलब रिटर्न कर देगा. ओके, सो दिस 2 ऑपरेशंस आर इन पीप एंड दिस मैनी आर इन पॉप. अगर अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग में तो प्रॉब्लम नहीं होगी सीरियसली, बट अगर मेरी टीचिंग मेथड समझ में नहीं आ रही, देन यू कैन प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स and you can write it down, no issue. Okay, and if you like it, then please subscribe it and like it. Okay, thank you.